for him, the small one, that one. Excellent, this boy was doing very extraordinary performance. I will request to please hand over the gift to our director, sir. He was enjoying the performance. Please clap for the small boy, Arman. It was very good, very beautiful. We are very proud of you. Thank you so much. Thank you. इल्म दौलत है जभी को लुटती नहीं. इल्म दौलत है जो is very important for our life because Allah has kept the success of entire humanity only in complete din. इंसान चेहरा तो साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नजर रहती है. इंसान चेहरा तो साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नजर रहती है, मगर दिल साफ नहीं रखता जिस पर अल्लाह की नजर रहती है. On the stage to recite a Hindi poem. सभी के सामने मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ. उससे पहले आप सभी का आदर के साथ स्वागत करता हूँ. तो मेरा कविता का नाम है मैं हूँ उनके साथ खड़ा. मैं हूँ उनके साथ खड़ा जो सीधी रखते अपनी रीढ़, कभी नहीं जो तज सकते हैं अपने न्यायोचित अधिकार, कभी नहीं जो सह सकते हैं शीश नवा पर अत्याचार. एक अकेला हो या साथ खड़ी हो भारी भीड़, मैं हूँ उनके साथ खड़ा जो सीधी रखते अपनी रीढ़, निर्भय होकर घोषित करते जो अपने उद्गार विचार, जिनकी जीवा पर होती है उनके अंतर का अंगार. इस कविता को सुनाने का यह उद्देश्य है कि जो व्यक्ति स्वाभिमानी, साहसी, मेहनती और बुद्धिमान होता है, भाग्य अर्थात किस्मत हमेशा उन्हीं के साथ देती है. इसलिए कभी हमें अपने किस्मत को नहीं कोसना चाहिए, बल्कि हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए. तब अल्लाह ताला भी हमारा साथ देंगे. धन्यवाद. खिलते हैं जब अब मुस्कुराते हैं, जहाँ जाते हैं चार चांद लगाते हैं. उस मंच का शोभा ही क्या कहना, उस मंच का शोभा ही क्या कहना जहां आप जैसे गेस्ट आते हैं. Now Afrida from class 7 come up on the stage to deliver a short speech. आरिफ सर ने करवाया था. Entire school competition was there, and from there we have selected the toppers. वो toppers लोग stage के पास में आ जाओ. As well as the class 10 students, those who are giving the board exam this year. All the class 10 students, those who are giving the board exam, वो लोग भी stage के पास में आ जाओ. All the class 10 students, all the class 10 students, those who are giving the board exam, come in front of the stage. All the class 10 students. Assalamu alaikum. Good evening to one and all. I feel immense gratification on being here today. In fact, in this remarkable event, I, Afrida Sarkar from 7th standard, brings in something to tell you all what our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah upon all of us. But yet, they cannot replace the benefit and spiritual effectiveness of miswak. It was Prophet sallallahu alaihi wasallam habit to use the siwak once he wake up. The hadith stated, if it were not that it would be difficult on my nation, then I would have ordered them to use the siwak after each prayer. I'll give you the scientific benefit. Several researches have been conducted that the use of miswak has splendid antimicrobial toothbrush that eliminate plaques, gum soreness, and maintain long-lasting oral aroma. Early to bed, early to rise. Rising early in the morning is the best way to greet the new day that has bestowed as a blessing upon all of us. Sleeping in right posture. Posture of sleeping is paramount importance because it helps in the functioning of organs, alleviating heart attack, dementia, and diabetes. Appropriate posture in sleeping is best for peaceful sleeping and accurate operation of body's vital organs. Spiritual significance. In lieu of Prophet sallallahu alaihi wasallam, a Muslim must sleep and adopt the posture that he has recommended. Islamic narration shed light on the imperativeness of sleeping on right side as stated, when the messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, used to retire to his bed, he would lie on his right side and then say,
I surrender my soul to you and I turn my face to you. Al-Bukhari. Scientific benefit. Lying on abdomen results in short breathing, while lying down on the back leads to respiration via mouth prone to cold that eliminates. While sleeping on the right side is preferable because it helps that the scientific results stated. Sleeping left lung is smaller than the right, hence the weight on heart will be less. Sunnah of cupping. Cupping therapy is the modern form of regulating blood, putting suction on the human skin to mobilize the flow of blood for heating pain or medical ailments. Spiritual significance. Cupping was declared as a good remedy by Prophet Muhammad ﷺ as he would be cupped on a daily basis. The hadith narrated, if there is an healing in your medicine, then it is in cupping, a gulp of honey, or branding with fire. But I don't like to be branded with fire. Al-Bukhari. Scientific benefit. Cupping on daily basis helps in removal of hazardous toxins that the human body accumulates on daily basis for alleviating migraine, fertility or joint pain. Prostration and wedding of shaitan. Prostration and wedding of shaitan. Since started, shaitan was our worst enemy. The path of shaitan is the path of havoc and mischief, making a person weak enough that result in the daily raising of suicide rates. Allah knows the contentment lies in His word. Hence, asks a person to enter into the peaceful religion as narrated. Verily, in the remembrance of Allah, do heart find rest. These are some sunnah that we can collect from our beloved Prophet Muhammad ﷺ. Asking Allah to be able to apply this in our daily life till our last breath. Thank you. My dear schoolmates, Assalamu alaikum and very good evening to you all. Myself, Mohammad Salaf Siddiqui from class 7 of our JIP English Medium School, a unit of Chanchal Javed Educational Public Trust. It is honor for me to stand before you all. Today, in this joyous occasion, I want to say something about a reflection of Islamic values at our school. In the teaching of Islam, we find guidance that encourage us to celebrate knowledge, unity, and pursuit of excellence. Prophet Muhammad ﷺ emphasized the importance of seeking knowledge, and our school in its commitment that this reflects the noble principle. Let us remember the brotherhood and that Islam promotes. Our annual function is not a just display of talents, but a celebration of community. It is my gratitude that our teacher thank you. स्टूडेंट तालियों से नवाजें इनको। जेक इंग्लिश तब से ये लोग हम लोग के पास पढ़ रहे हैं। दिस इज आवर फर्स्ट बैच। इन लोग का एग्जाम फेब 19 से स्टार्ट हो जाएगा और कुछ दिनों के बाद ही इन लोग का बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। ये हम लोग के लिए भी बहुत बड़ा एक परीक्षा है, एग्जाम है। अगर ये बच्चा अच्छे से स्कोर कर पाएगा, अच्छा मार्क्स लाएगा, तो हम लोग को भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि हम लोगों को पूरे टीचर्स के कोऑपरेशन से, पूरे पेरेंट्स के कोऑपरेशन से ये बच्चे जो मेहनत किए हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, हर एक टीचर का, हर एक पेरेंट्स का कोऑपरेशन है। बोल के इस बार ये हम लोग का फर्स्ट बैच है। इस बैच में 16 बच्चे। आप सभी पेरेंट्स से ये गुजारिश है और ये रिक्वेस्ट है कि इन बच्चे के लिए, हमारे स्कूल के लिए, ताकि ये लोग जो एग्जाम देने वाले हैं
हम लोग सभी को इसे जो भी मेरा आवाज सुन पा रहे हैं, सभी पेरेंट्स से, सभी गार्जियन से रिक्वेस्ट है, आप लोग इन लोगों के लिए दुआ करें ताकि ये लोग अपने जिंदगी में बहुत आगे बढ़े, बहुत अच्छे मुकाम में पहुंचे। जो ये लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ये लोग अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए, ताकि इनके पेरेंट्स जो उम्मीद के साथ इनको हमारे स्कूल पे भेजे थे, वो उम्मीद बरकरार रहे, और जो बच्चे इनके बाद आने वाले हैं नेक्स्ट बैच, वो लोग को भी इनसे इंस्पिरेशन मिले। सो मैं हर एक पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा फॉर आवर फर्स्ट बैच, प्लीज गिव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, एवरीवन क्लैप योर हैंड्स प्लीज, दे नीड योर सपोर्ट। ये कोई फेयरवेल सेरेमनी नहीं है, ये एनुअल फंक्शन हो रहा था, बोल के हम लोगों ने डिसाइड किया कि बच्चे को छोटा सा गिफ्ट दे, कुछ दिन के बाद हम इन लोगों को फेयरवेल देंगे, वहां पे इन लोगों के लिए अच्छा सा अरेंजमेंट किया जाएगा। अभी ये प्रोग्राम हो रहा था, हम लोगों को लगा कि शायद एक गिफ्ट देना चाहिए, ये एक छोटा सा मोमेंटो है। ये बच्चे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, हम लोगों को ये उम्मीद है जो ये लोग अच्छे मार्क्स से अपना बोर्ड एग्जाम कंप्लीट करें। सो आई विल रिक्वेस्ट आवर चेयरमैन सर, director sir and vice principal ma'am to please come on the stage. It's a request to chairman sir, director sir and vice principal ma'am to come on the stage. All of you clap your hands, all of you clap your hands for your seniors. Jimmy sir, आप आइए, and keep clapping there boys, keep clapping for seniors, everyone. Sultana ma'am, please move forward. We wish them a very best of luck. Audience, please give a big round of applause for them. Everything I have, everything I own, everything I eat is thanks to you. Every breath I take, every bird I hear, every smile I see is thanks to you. Alhamdulillah, 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 all thanks is to Allah. Alhamdulillah, 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 all thanks is to Allah. Every drop of rain is a mercy from above, feeding all the earth is thanks to you. Every ray of sun, the light of the moon, the wind when it blows is thanks to you. Alhamdulillah, 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 all thanks is to Allah. Alhamdulillah, 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 all thanks is to Allah. Everything is thanks to you. तालियां बजाएं, तालियां बजाएं। क्या बात है, सबका पास आ गया है, अभी दिल मुर्दा नहीं हो रहा है। तालियां बजाएं सब, क्या बात है, तालियां बजाएं, उधर से आवाज नहीं आ रही है। तालियां बजाएं, शुरू, ताली बजाएं। Everything is thanks to you, Allah. All praises are for you. Everything is thanks to you, Allah. Alhamdulillah, 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 all thanks is to Allah. Alhamdulillah, 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 all thanks is to Allah. नबी आबाद अम्माबाद औज़ु बिल्लाहि मिनश
मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम हमारी शान है और हम मुसलमान हैं। इस्लाम हमारी शान है और हम मुसलमान हैं। यहाँ बैठे हर एक मेहमान को मेरा सलाम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Audience, please clap your hands. Honorable Chief Guest, Chairman Sir, Director Sir, our respected Principal Sir, Vice Principal Ma'am, all my colleagues, dear parents and my most beloved students. Wishing you all a very good evening and thanks to you for your patience, for your support to stay with us till now. Thank you so much everyone. It's a great honor to stand here and speak in front of you all on this exclusive day, our school's annual function. Today is a day of celebration, a day to acknowledge the hard work and dedication of our teachers, students and staff. So, on this prosperous occasion, I would like to speak about the topic that hijab is not a barrier in education. At first, I would like to tell you all that what does our Quran says about education. So, in Islam, education is a divine command for both men and women. The Quran as well as the Hadith of beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, that is recorded in the Hadith collection of Ibn Mazah, says that searching for knowledge is compulsory for every Muslim, male and female. And one more thing that is mentioned in our Quran, that women, like men, are obligated to increase their knowledge and pursue it. Now I would like to tell you all that what is the first word that is mentioned in our Quran. That is Iqra. That means read. In this surah, Surah Al-Alaq, I would like to recite that. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal adram, alladhi allama bil qalam, allama insana ma lam ya'lam. I want to tell you all that in this surah, Allah has said that we have to read and read. Means Allah subhanahu wa ta'ala has said to every Muslim, seek knowledge and get knowledge, read and read. So how could we say that hijab can be a barrier and that Allah has said us to wear hijab? So I would like to tell you all that what is the intention to wearing a hijab? The intention to wearing a hijab is to protect a woman from evil eyes. So I would like to show some examples, some hijabi girls examples. So it is Tabassum Sheikh, that is Indian, who topped Karnataka second PUC exams. It was a very great honor for us. She preferred hijab and also she topped in second PUC exam. It was a very great thing. And one more example is Fencer Iftihar Muhammad. She made history in 2016 by being the first US team member to compete in the Olympics wearing a hijab. So I would like to tell a शायरी कि रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता कि रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता. And one more real example that is in front of all of us, that is our JAPT English Medium School, that is not only carrying hijab, also it is providing a very high class education to our girls and boys equally. So Director Sir, I would like to give you a very big thanks to make me the part of JAPT English Medium School. Sir, thank you so much by my heart. I want to tell you all that our scene is not so difficult as we have made this. It's so easy and it's really very beautiful. As our Prophet has said that only smiling is sunnah, and sunnah, by following sunnah we get deeds, we get good deeds. I would like to stop my speech once again with a शायरी. हया की चादर में सर से पांव तक ढकी छुपी हुई लड़की, हया की चादर में सर से पांव तक ढकी हुई छुपी लड़की,
दूर से ही लग रहा है इस्लाम की शहजादी आ रही है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड अटेंशन, थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum Abu Talha. He will translate the Quran. He will not translate, means he will say the Quran in Arabic only. Next Iftikhar, he will translate the same ayat in English. Then Rubel, he will translate the same ayat in Urdu, and I will translate in Bengali. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Surah Al Imran, volume number 3, ayat number 185. Everyone shall taste death, and only on the day of resurrection shall you be paid your wages in full. And whoever is removed from the fire and admitted in the paradise, he indeed is successful. The life of this world is only the enjoyment of deception, a deceiving thing. सूरह अल इमरान, सूरह नंबर 3, आयत नंबर 185। इस आयत में अल्लाह तबारक तआला ने ये फरमाया है कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है और तुम सबको तुम्हारे अमाल के पूरे पूरे बदले क़यामत के दिन मिलेंगे। फिर जिस किसी को दोज़ख से दूर हटा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो सही माने में कामयाब हो गया। और ये दुनियावी जिंदगी तो जन्नत के मुकाबले में धोखे के समान के सिवाय और कुछ भी नहीं। कुरान करीमे 3 নম্বর সূরা আল ইমরানের 185 নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত বলেছেন, জীব মাত্র মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে আর কিয়ামতের দিনেই তোমাদের কর্মফল পরিপূর্ণ মাত্রায় তোমাদের প্রদান করা হবে। এই পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। এই আয়াতে কয়েকটি বিষয় বর্ণিত করা হয়েছে। প্রথমত, মৃত্যু এক এমন ধ্রুব সত্য বিষয় যা থেকে নিষ্কৃতির কোনো পথ নেই। দ্বিতীয়ত, দুনিয়াতে ভালো মন্দ যেই যাই করুক না কেন তাকে তার পরিপূর্ণ প্রতিদান পরকালে দেওয়া হবে। তৃতীয়ত, প্রকৃতিক সফলতা সেই অর্জন করতে সফল হয়েছে যে দুনিয়াতে থাকাকালীন প্রিয় প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করে নিয়েছে, স্বয়ং যা তাকে জাহান্নাম থেকে দূরে করে জান্নাতে প্রবেশ করে দিয়েছে। চতুর্থ, এই পার্থিব জীবন হলো ধোঁকার সম্পদ। যে এই ধোঁকা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিতে পারবে সেই হবে ভাগ্যবান, এবং যে এই ধোঁকার জালে ফেসে যাবে সেই হবে ব্যর্থ ও হতভাগা। وقال الله تعالى في القرآن المجيد وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إنما عليم خبير. Surah Luqman, volume number 31, ayat number 34. And no person knows and what land who will die. Verily, Allah is all knower and Allah is aware of all things. सूरह लुकमान, सूरह नंबर 31, आयत नंबर 34। कोई शख्स भी यकीनी तौर पर ये नहीं जानता कि वो आने वाले कल पर क्या अंजाम देगा, और ना ही ये जानता है कि वो कहाँ और किस सरजमीन पे मरेगा और दफन होगा। কুরআনে কারিমের 31 নম্বর সূরা লুকমানের 34 নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত বলেছেন, এবং কেউ জানে না কোন স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞান, আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবহিত। وقال الله تعالى في القرآن المجيد فإذا جاء أحدهم الموت قالوا رب ارجعون. Surah Nahl, volume number 31, volume number 16, ayat number 63. When there comes, neither can they delay nor they can advance it an hour or a movement. सूरह नहल, सूरह नंबर 16, आयत नंबर 61। जब उसकी मौत आ जाएगी तो वो वक्त मुकर्ररा से न एक लम्हा आगे होगा न एक लम्हा पीछे। কুরআনে কারিমে 16 নম্বর সূরা নাহলের 61 নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত বলেছেন, অতঃপর যখন তোমাদের সময় আসবে তখন তোমরা মুহূর্তকাল অথবা ত্বরা করতে পারবে না। وقال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله من الله تعالى. Surah Al-Mu'min, volume number 63, ayat number 9. You who believe,
Let not your properties or your child divert you from the remembrance of Allah. Whoever does that, then they are the loser. सूरह अल मुनफिकून सूरह नंबर 63 आयत नंबर 9। ए ईमान वालो, तुम्हारी दौलत और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल न करने पाए, और जो शख्स ऐसा करेंगे वो बड़े घाटे का सौदा करने वाले होंगे। कुरान कारिमे 63 নম্বর সূরা মুনাফিকুনের 9 নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত বলেছেন, হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের ধন সম্পত্তি ও সন্তান সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর শরণে হতে উদাসীন না করে। যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। অর্থাৎ মাল এবং সন্তান সন্ততির ভালোবাসা তোমাদের উপর এমন ভাবে প্রভাব বিস্তার না করে ফেলে যে তোমরা আল্লাহর কর্তৃক আরোপিত যাবতীয় বিধিবিধান ও ফরজ কার্যাবলী থেকে উদাসীন হয়ে যাও, এবং তারই নির্ধারিত হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য খেয়াল করো। মুনাফিকদের আলোচনার পরেই এই সতর্কতার উদ্দেশ্য হলো একথা জানিয়ে দেওয়া যে এটা হলো মুনাফিকদের চরিত্র, যা মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ইমানদারদের চরিত্র এর বিপরীত, আর তা হলো তারা সবসময় আল্লাহকে স্মরণে রাখেন এবং হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য খেয়াল করেন। قال الله تعالى في القرآن المجيد حتى إذا جاء أحدهم الموت قالوا رب ارجعون. Surah Al-Mu'min, volume number 23, ayat number 99. Until when death comes to one of them, those who join partners with Allah, he says, "Hey my Lord, send me back." सूरह अल मोमिन सूरह नंबर 23 आयत नंबर 99। यहाँ तक कि जब उनमें से किसी पर मौत आ खड़ी होगी तो वो वक्त मुकर्ररा से न एक लम्हा आगे होगा न एक लम्हा पीछे। কুরআনে কারিমে 23 নম্বর সূরা আল মুমিনের 99 নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত বলেছেন, যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হবে তখন সে বলবে, হে আমার রব, আমাকে পুনরায় প্রেরণ করুন। থ্যাংক ইউ। Class 7 come up on the stage to perform a Hindi recitation. आदत की तरह मैं एक काम करता हूँ और जब भी किसी से मिलता हूँ पहले सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रुबैल अली, मैं कक्षा 8वीं का विद्यार्थी हूँ और मैं आज हमारे जेप इंग्लिश मीडियम स्कूल के वार्षिक उत्सव पर आप सभी का स्वागत करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे मित्रों द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों को देखकर आनंद उठा रहे होंगे। और मैं आज इस वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य पर आप सभी के सामने एक कविता पेश करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का नाम सूखे सुमन से है, जिसकी कवित्री महादेवी वर्मा है। था कली के रूप में शेषव में अहो सूखे सुमन, मुस्काता था खिलाती थी अंक में तुझको पवन, खिल गया जब पूर्ण तो मुंजुल से कोमल पुष्प बन, लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे आने भरमर, स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, रात तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा, लोरिया गाकर मधुप निद्रा विश्व करते तुझे, नियतन माली का रहा आनंद से भरता तुझे, कर रहा अटखेल यहाँ इतना सदा उद्यान में, अंत का ये दृश्य आया था कभी ध्यान में, सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ, गंध कोमलता नहीं मुंज मुरझाया हुआ, आज तुझको देखकर चाहत भरमर आता नहीं, लाल अपना रंग तुझ पर प्राप्त बरसाता नहीं, जिस अंक में प्यार था तुझको किया, तीर झोंके से सुला उसने तुझे भू पर दिया, कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन, किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन, मत व्यथित हो फूल, किसको सुख दिया संसार ने, स्वार्थ समय सबको बनाया है यहाँ करतार ने, विशेष में है फूल तू सबके हृदय भाता रहा, दान कर स्वार्थ सब फिर भी हया हर्षाता रहा, जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनोज निसार को, हमसे मनोज निसार को। इस कविता में कवित्री ने फूल के माध्यम से ये बतलाया है कि जब तक एक फूल सुंदर सुकोमल एवं सुगंधित रहता है तब तक भंवरे माली सभी उससे प्रेम करते हैं, परंतु उसके सूख जाने पर ना ही उसके पास भंवरे
और ना ही उसके पास माली और ना ही उसके पास मनुष्य आते हैं। ठीक यही हाल मनुष्य का भी है। जब तक एक मनुष्य युवान एवं कुछ करने की क्षमता और शक्ति रहती है तब तक उसके अपने उसके पास रहते हैं, परंतु जब एक मानव उसके जीवन के अंतिम क्षण तक पहुंचता है तब उसके अपने उसके साथ छोड़ देते हैं। तो मेरा प्रत्येक मानव से मेरा यही कहना है कि उम्मीद किसी मनुष्य से नहीं, सिर्फ अपने रब से रखिए। इस शायर के साथ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या, ये जहाँ चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। ऑडियंस प्लीज। जब से स्कूल है तब से भी हमारे स्कूल में पढ़ रहा है। इसका एक छोटा भाई भी पढ़ता है। इनके पेरेंट्स बाहर रहते हैं दिल्ली में। जब से ये बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है ये पेरेंट्स रेगुलर हम लोग को बोलते रहते हैं कि सर हम मुलाकात करने भी नहीं आ सकते हैं, आप लोग के भरोसे, अल्लाह के भरोसे आप लोग के ऊपर छोड़ दिए हैं। शायद से आज उनको रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा। सुबह से वो लोग आए हुए हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं। ये बच्चा कल भी परफॉर्म किया था, आज भी किया था। हम लोगों ने अभी एक छोटा सा गिफ्ट छोटे बच्चे को दिया। हम लोगों को लगता है ये बच्चा भी डिजर्व करता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे तो परफॉर्म कर रहे हैं, हर एक को हम लोग अभी गिफ्ट नहीं दे सकते हैं, लेकिन अप्रिशिएट तो जरूर कर सकते हैं। ये बच्चा का जो परफॉर्मेंस सुबह से लेके अभी तक रात भर मेहनत करना, डेकोरेशन में प्रैक्टिस करना, इतना सारा इवेंट में नाम दिया, सारा किरदार बहुत अच्छे से निभाया, तो हम लोगों ने डिसाइड किया उसको भी एक प्राइज देना चाहिए। सो आई विल रिक्वेस्ट टू एवरीवन to give a big round of applause for Rubel of class 9. Everyone please. और हम भी बहुत शुक्रगुजार हैं उनके पेरेंट्स को जो आप लोगों ने हम लोग को भरोसा किया, और हम लोगों को लग रहा है कि शायद ये बच्चा रंग जरूर लाएगा, और आप लोगों को ये दिखाई भी दे रहा है। इसी तरह जो बच्चा भी हमारे स्कूल पे जुड़ा हुआ है थोड़ा हम लोग के ऊपर भरोसा रखिए। इंशाल्लाह हर एक बच्चा को हम लोग कोशिश करेंगे तो इस तरह बने और भी आगे जाए, जिंदगी बहुत कामयाब हो। आई विल रिक्वेस्ट सफीकुल सर to please come up the stage and give him the prize. Everyone clap your hands please, everyone. So one more announcement is there. Thank you. There are some, थोड़ा स्टेज में आ जाइए everyone please. तो जल्दी आ जाइए please everyone. तो टाइम थोड़ा है, जल्दी आ जाइए प्लीज। मेरे पेरेंट्स थोड़ा बीमार हैं, शायद बहुत लोगों को पता नहीं है ये चीज। मेरे मदर फादर दोनों, मेरे अब्बा का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, मेरी अम्मा का भी कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ है। थोड़ा कुछ दिनों से मैं बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा हूँ, तो यही वो रिलेटिव्स हैं। मैं तो स्कूल छोड़ के जा नहीं पाता उतना। मेरे पेरेंट्स का, मेरे अब्बू अम्मू का ये लोग ख्याल रखते हैं। मैं 7 दिन 8 दिन में जाता हूँ, मेरे एब्सेंट में ये लोग उनको देख रेख करते हैं। मैं आप लोगों को परिचित कराता हूँ, ये मेरे छोटे अंकल हैं, मेरे अपने छोटे अंकल हैं। इनका भी एक बहुत बड़ा स्कूल है हमारे गाँव में, और ये स्टेट रैंक वॉलीबॉल चैंपियन प्लेयर भी रह चुके हैं। इनका अपना एक स्कूल है, इनके स्कूल में 500 बच्चा पढ़ता है, हमारे गांव पे स्कूल है। ये भी एक स्कूल ऑनर अभी फिलहाल में है। इनके पास में ये मेरे मामा हैं, ये लॉयर है, पेशे से एडवोकेट है। इसके पास में ये बड़े भैया हैं, ये बिजनेस करते हैं। ये मेरा दोस्त है, ये भी बिजनेस करता है। ये लोग हर साल यहाँ पे आते हैं, अपना वक्त देते हैं। हम बहुत थैंकफुल हैं जो मेरे माँ बाप यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, ये लोग अपना कीमती वक्त गवाते हुए यहाँ पहुंचे हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। और यही लोग हैं हम जो यहाँ पे काम करते हैं अपना घर को छोड़ के, ये लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं। हम तहे दिल से इन लोगों का शुक्रगुजार करते हैं और रिक्वेस्ट करेंगे हमारे डायरेक्टर सर को प्लीज थोड़ा आगे इन लोगों को ऑनर करें प्लीज। और सबको प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे इन लोगों के लिए, प्लीज क्लैप योर हैंड्स प्लीज एवरीवन, बिकॉज ऑफ देम ओनली आई कैन वर्क हियर प्रॉपर्ली। प्लीज एवरीवन प्लीज। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जो कविता का मूल्य भाग है माता पिता। दुख दर्द और तकलीफ में जिन्हें याद हम करते हैं, गिरकर रोकर उदासी में जिनका साथ हम ढूंढते हैं। दुनिया ठुकरा दे जब जो हमारा हाथ थाम लेता है, वो कोई और नहीं बल्कि माता पिता ही तो कहलाते हैं। यादों को शब्दों में पिरो रहा हूँ, बचपन से सब अब आंखों के सामने नजर आता है। तो कभी पापा के उंगली पकड़े हुए, तो कभी माँ के गोदे बैठे खुद को देख रहा हूँ।
नहीं अकेला आया हूँ, मेरे संग खुदा भी है, माता पिता के आंखों में उस खुदा का दुआ भी है। इस कविता का मूल्य भाग है माता पिता। थैंक यू। Audience, please clap. আমি সমস্ত নন টিচিং স্টাফদের বলছি, সমস্ত নন টিচিং স্টাফ মাসিরা এবং গেটম্যান নুর আলম এবং আশরাফুল দা, গেট লক করে আপনি এখানে আসেন, গেট লক করে দেন, চলে আসেন সমস্ত নন টিচিং। আমিরুল মুমিনিন खुदा का नबी से वो नजरें हटाता नहीं है, यहाँ पर नबी है वो अब भी वही है। वो ईमान लाने बचाने में पहला, वो पारे खिलाफत उठाने में पहला, सदाकत शुजाअत में वो सबसे आगे, नबी की अताअत में वो सबसे आगे, रसूले खुदा पर फिदा होने वाला, वो जाने वफा पर फिदा होने वाला, वो सारे का सारा खुदा के लिए था, वो जिंदा फकत मुस्तफा के लिए था। अबू बकर सच्चे की सना, सच्चों का सुल्तान अबू बकर, फिर मारा फरिश्तों का के कुर्बान अबू बकर, फिर मारा फरिश्तों का के कुर्बान अबू बकर, कुर्बान अबू बकर, मेरी 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 शान अबू बकर, मेरी 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 जान अबू बकर, मेरी 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 शान अबू बकर, मेरी 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 जान अबू बकर, मेरा मेरा ईमान अबू बकर, अबू बकर। हर पहले ने देखा था कि पहला है अबू बकर, हर पहले ने देखा था कि पहला है अबू बकर, पिछले का भी पहला ईमान अबू बकर। सच्चे की सगाई, सच्चों का सुल्तान अबू बकर, फिर मारा फरिश्तों का के कुर्बान अबू बकर, मेरी 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 शान अबू बकर, मेरी 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 जान अबू बकर, मेरा मेरा ईमान अबू बकर, अबू बकर। मिलना हो किसी को जो नबी से तो सुन ले, मिलना हो किसी को जो नबी से तो सुन ले, पहले भी था है आज भी, पहले भी था है आज भी दरबान अबू बकर। सच्चे की सना, सच्चों का सुल्तान अबू बकर, फिर मारा फरिश्तों का के कुर्बान अबू बकर, मेरी 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 शान अबू बकर, मेरी 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 जान अबू बकर, मेरा मेरा ईमान अबू बकर, अबू बकर। किसी खास की आमद है कि जन्नत में है हलचल, किसी खास की आमद है कि जन्नत में है हलचल। एक शोर सा सुनता हूँ के, एक शोर सा सुनता हूँ के मेहमान अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर। सच्चे की सगाई, सच्चों का सुल्तान अबू बकर, फिर मारा फरिश्तों का के कुर्बान अबू बकर, सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर। घर बार उठा लाया वो कदमों में नबी के, घर बार उठा लाया वो कदमों में नबी के, घर बार उठा लाया वो कदमों में नबी के, और आका का फरमान मेरा सामान अबू बकर। क्या बात है, तालियां बजाएं सब। सच्चे की सना, सच्चों का सुल्तान अबू बकर, फिर मारा फरिश्तों
रब ने भी रखा दोनों को हश्र इकट्ठा, रब ने भी रखा दोनों को हश्र इकट्ठा। यारों में भी रखता है, यारों में भी रखता है अलग शान अबू बकर। तालियां बजाए, तालियां बजाए। कुर्बान अबू बकर, मेरी 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 शान अबू बकर, मेरी 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 जान अबू बकर, मेरा मेरा ईमान अबू बकर, अबू बकर। हर रंग सलामत है ना, खुशबू में कोई फर्क, हर रंग सलामत है ना, खुशबू में कोई फर्क। इखलाक मोहम्मद के हैं, इखलाक मोहम्मद के हैं गुलकार अबू बकर। सच्चे की सगाई, सच्चों का सुल्तान अबू बकर, फिर अबू फरिश्तों का कील अबू बकर। मेरी 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 शान अबू बकर, मेरी 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 जान अबू बकर, मेरा मेरा ईमान अबू बकर। अमीरुल मोमिनीन, अबू बकर है। जब नबी मेराज गए और लौट के आने के बाद जब ये वाकया मेराज का वाकया इंसानों को सुनाने लगा, कुफ्फार को सुनाने लगा, मुहाजिर को सुना, मदीने में मक्का में सुनाने लगा, तो सब ने इनकार कर दिया। लेकिन जब बारी आई अबू बकर की तो उसने बिला झिझक ये कहते हुए कहा, अगर नबी ने फरमाया है तो बिल्कुल सच है और सादिक है। इसीलिए अबू बकर सिद्दीक को, अबू बकर नाम है, सिद्दीक उसका लक़ब है, यानी सच्चा। यही वो मोहब्बत का पहचान है उनकी। हम लोग हॉस्टल में एक साथ रहते हैं और स्कूल में कभी भी बड़ा योगदान रहता है, स्पेशली टीचर्स लोगों का। अब यकीन मानिए लास्ट 2-3 दिनों से इन लोगों ने ना वक्त में खाना खाया, जो भी फैमिली मेंबर्स उनके आए उनको ना वक्त दिया। इन लोगों ने बस स्कूल को देखते हुए महीने पार रहे हैं। अभी तक जो हो रहा है ये इन लोगों का ही मेहनत है, ये सारे टीचर्स का। सारे टीचर्स ने तो किया ही है, लेकिन इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा किया है। आई वुड लाइक टू से टू एवरीवन, इन सभी के लिए, मासी, गेटमैन, आपके बच्चे का जब तबीयत खराब होता है, कोई दिक्कत होता है, तो यही मासी है जो उन लोगों को। आरिफ सर आप भी आइए आगे, आप भी आइए सर, इधर आइए। ठीक है, तो सर आपका हो गया, आप तो आप भी हट जाइए। आरिफ सर आप आइए। मैडम गिफ्ट भेजिए वहां से। मासूम गिफ्ट पठाओ, गिफ्ट पठाओ, बहुत देर गिफ्ट पठाओ। आइए सचिन सर आप आइए, फटाफट आइए, थोड़ा टाइम नहीं है। दीजिए, रुक जाइए, आप तो रुक जाइए, आप बढ़िए मैडम थोड़ा। हाँ दीजिए उधर। हाँ ठीक है, थैंक यू। ये हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं, आप लोगों ने अपना कीमती टाइम गवा के हम लोग के पास आए। हम लोग तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आप सभी का। Now an Arabic nat will be performed. من سليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله لأمي وأبي فديتك سيدي صلاة والسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا
या हबीबी या शफी या रसूल अल्लाह बिउम्मी व अबी फदैतुक सय्यदी सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबी या मुहम्मद अतैत बिस्सलाम वल हुदा मुहम्मद हबीबी या मुहम्मद या रहमतुल लिल आलमीन या मुहम्मद हबीबी या मुहम्मद। थैंक यू। शायरी मकाम वो मकाम अभी भी बाकी है। अभी तो आए जमीन पर, अभी आसमान का उड़ान बाकी है। अभी तो लोगों ने सुना है सिर्फ जेफ्ट का नाम, कि अभी तो लोगों ने सुना है सिर्फ जेफ्ट का नाम, अब इस नाम का पहचान बनाना बाकी है। Everybody present over here. Now Naida San from class 10, please come up on the stage and give a short speech. And my dear colleagues, my name is Naida San. I read in class 10. The name of my school is Jept English Medium School. As you know that we are here to celebrate this occasion, so I would like to say a few words on sports. Sports is good for all of us in daily life, as it involves us in common physical activity under a healthy environment. The environment of sports becomes very competitive and challenging for the sportsmen, so they focus on the challenges put in front. There are variety of sports played accordingly by the people in various countries. National or international level sports competition can take place in many countries for any sports. Revolution come to the sports field time to time and replaced by Ashtanga or other forms of yoga. Playing sports help us in many ways all through the life. Variety of sports brings a lots of positive opportunities for us. There are various problems also occur, however they do not matter. Participating in the sports activities enhance children's school accomplishments. Sports are the way to big achievements in children's lives. Getting interested in any of the sports gives a worldwide identification and lifelong achievements. Facing challenges of the sports teach us to tackle for other challenges as well as survive in a competitive society. With this context, I am ending my speech. Thank you. Alma, come up on the stage. बुला लो फिर मुझे ऐसा बरोबर मदीने में मैं फिर उता हुआ हूँ तेरे दर पर मदीने में हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहाँ के ताजदार जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहाँ के ताजदार हो गए गम बेशुमार काफिला ये तो मेरा सलाम काफिले वालों सुनो याद आए तो मेरा सलाम अर्ज करना रोते रोते हो सके तो रोते रोते हो सके शुमार हो करम सरकार अब तो गए गम जिंदगी के
गए गम बेशुमार चूम कर खाके मदीना झूमता फिरता था मैं, याद आते हैं मदीने के मुझे ले लो नहार, याद आते हैं मदीने के शुमार। थैंक यू। स्टाफ है हमारे स्कूल पे सब कोई, जो टीचर इवनिंग कोचिंग में भी आते हैं उन लोग को भी बुलाया जा रहा है। जो टीचर इवनिंग कोचिंग में भी आते हैं, मॉर्निंग कोचिंग में भी आते हैं, वो भी आइए, वो भी जबान आज कुछ कहते कहते हिचकिचा गया मैं, खुद को मुसलमान कहते कहते। Now Alif Noor from class 9 come up on the stage for an English recitation. I will request our chairman sir, please come forward. Chairman sir, आगे थोड़ा बढ़ के आइए। Chairman sir, चेयरमैन सर आइए। देखिए मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बोला था, अभी फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो नए हैं, बहुत सारे टीचर्स जब से स्कूल है तब से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो मैं स्कूल खोलने से पहले भी जहाँ पे काम करता था तब भी वो मेरे साथ थे। ये हमारे टीचिंग स्टाफ है और भी कुछ स्टाफ है जो अभी करूँगा। आज जेप्ट जिस भी मुकाम पे पहुंचा है, whatever success, whatever achievement we have got by the sacrifice of these teachers, ये अपने परिवार को छोड़ के, घर को छोड़ के हॉस्टल पे रहते हैं, स्कूल पे आते हैं, बहुत के छोटे बच्चे हैं जो घर पे हैं, उनको छोड़ के ये लोग आते हैं, बच्चे को दे रहे हैं, हम लोगों को दे रहे हैं। और हम लोग on behalf of the management we are very thankful to them by their sacrifices what they are giving to us। और इन्हीं की वजह से आज ये जो प्रोग्राम हम लोग कंडक्ट करवाए हैं या करवाते आ रहे हैं, इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट ईयर इससे भी अच्छा प्रोग्राम करेंगे। इन लोगों का सपोर्ट, इन लोगों का कोऑपरेशन हमेशा अच्छा रहता है। अगर आप लोग कोऑपरेट नहीं करते, कुछ भी करना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं था। मैं सारे बच्चे, सारे पेरेंट्स, जो भी कोई यहाँ पे प्रेजेंट है, जो भी इंसान जेप्ट को दिल से प्यार करता है, हम सभी को रिक्वेस्ट करते हैं इनके सम्मान के लिए, एवरीवन क्लैप योर हैंड्स प्लीज, एवरीवन। हम लोग को बहुत खुशी होती है कि ये हम लोगों के पार्ट है, हम लोग से जुड़े हुए हैं। जेन्युइनली फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट आई एम वेरी थैंकफुल टू द टीम ऑफ आवर स्कूल टीचर्स। वी आर वेरी थैंकफुल टू देम फॉर देयर कोऑपरेशन, फॉर देयर सपोर्ट। एट लास्ट आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल द गार्जियन वंस अगेन, देखिए जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे सम्मान करिए या ना करिए, इनको जरूर कीजिए। अगर आपके बच्चे को कोई निखार रहा है तो ये लोग कर रहे हैं, हम बस टेबल में बैठ के ऑपरेट करते हैं, बाकी सारा काम यही लोग करते हैं। आप लोगों से तहे दिल से ये रिक्वेस्ट है, मैं कल भी बताया, आज भी बताया, बार बार बोल रहा था, इनको जरूर सम्मान कीजिए प्लीज, ये सम्मान के हकदार हैं। ये जो प्रोग्राम आज हो रहा है आप लोग के सामने, काफी सारे बहुत स्कूल है, आप लोगों ने बहुत स्कूल का प्रोग्राम देखा होगा, लेकिन हम लोगों को ये भरोसा है, हम लोगों को ये कॉन्फिडेंट है। तो रिक्वेस्ट आवर डायरेक्टर सर एंड चेयरमैन सर टू हैंड ओवर अ स्मॉल गिफ्ट टू देम प्लीज। वन बाय वन कम फॉरवर्ड, एवरीवन। बॉयज क्लैप योर हैंड्स, बॉयज एंड गर्ल्स, एवरीवन फॉर टीचर्स।